Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to our online English class. I'm your English teacher. I hope you all will be fine and safe at home. Today we are going to start the new Oxford Modern English book of grade 5 with the first chapter. So take out your English books and open your books at page number 2. Okay, now look at the title of this chapter. The title of the chapter is The World in a Wall. Do you have any idea what does it means? Let me explain. The Urdu meaning of the world in a wall is एक दीवार में पूरी दुनिया. Here you can take two meanings of this title. The first one is कि एक दीवार है और उस दीवार के अंदर एक अलग ही एक पूरी दुनिया बसी हुई है, एक अलग दुनिया रह रही है. Or you can also take its meaning like किसी की पूरी दुनिया जो है तो वो सिर्फ एक दीवार है. Okay, by reading the story it will be clear to you that what actually the world in a wall means. So this story is about a boy who exports the scorpions with its babies to his home. He kept them in an old matchbox and he takes them to his home, which creates a great chaos there. The boy was actually the writer himself. The writer of this chapter is Gerald Durrell. Gerald Durrell was an English naturalist, zookeeper, conservationist, author, and television presenter. But he is perhaps the best remembered for the books he wrote about his life as an animal collector and enthusiast. In this story, we will read that how the act of writer creates a great chaos in his home and what did happen. Okay, so let's start the translation of this chapter. Put your fingers on the first line and keep a pencil and razor with yourself, because side by side I will tell you the Urdu meaning of some difficult words and you have to write the meanings of that particular words on the top of it. Got it? Okay, this extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. ये सबक जेरल ड्यूरल की एक किताब माई फैमिली एंड अदर एनिमल से ली गई है. मीन्स जेरल ड्यूरल की एक किताब है जिसका नाम माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स है. तो उसी बुक से आप लोगों का ये जो चैप्टर है तो ये वहाँ से लिया गया है. Look at the word autobiography. What does it mean? Autobiography means a बीती. जब हम अपने ऊपर या जब कोई अपने ऊपर एक किताब लिखता है और अपनी बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक सारी चीज़ें उसमें बयान करता है, उसके साथ क्या क्या हुआ है या उसने क्या अचीव किया है, उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें जब कोई अपने ऊपर एक किताब में लिखता है तो दैट बुक बिकम्स एन ऑटोबायोग्राफी. आप लोगों ने एक वर्ड बायोग्राफी भी सुना होगा. बायोग्राफी हम उस बुक को कहते हैं जब कोई किसी फेमस पर्सनालिटी पर या किसी अजीम लीडर पर या नेशनल हीरोज़ पर जब कोई बुक लिखता है, सो दैट बुक इज़ कॉल्ड बायोग्राफी. फॉर एग्ज़ाम्पल कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, उनके ऊपर कितनी सारी बुक्स लिखी गई हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में. तो वो बुक्स डिफरेंट राइटर्स ने लिखी है एंड दैट बुक्स आर कॉल्ड बायोग्राफी. बट जब कोई खुद अपने ऊपर एक बुक लिखता है सो दैट बुक इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? Durrell was an expert in studying animals.
ड्यूरल जानवरों का मुताला करने में माहिर था, मीन्स वो जानवरों को स्टडी करता था. When he was 10 years old, Dural, his older siblings, and his mother moved to Carpo in Greece to live with Dural's grown-up brother Larry. जब वो 10 साल का हुआ तो वो अपने बहन भाइयों और अपनी मदर के साथ करफो मुंतकिल हुआ. करफो एक शहर का नाम है जो कि ग्रीस में है, और वहाँ पर क्या करने गए थे? अपने बड़े भाई जवान भाई लेरी के साथ रहने के लिए गए थे. ग्रीस जो है तो ये एक मुल्क का नाम है, और करपो जो है ये एक सिटी का नाम है. ओके, एंड करपो इज़ एन आइलैंड. करपो की जो सिटी है तो ये एक आइलैंड है, मीन्स इसके चारों तरफ पानी है. आइलैंड हम उस जगह को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है, समंदर होता है. समंदर के बीच में जब कोई इलाका होता है, लैंड होता है जिसके ऊपर लोग रहते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड. I have a picture of Corfu. Look at here. This is Corfu city, and you can clearly see the water around the city. Okay. It was here that Dural began to collect and keep animals as pets. यहाँ पर जेरल्ड ने जानवरों को जमा करना और उनको एज अ पेट पालना शुरू किया. जब वो करफो शिफ्ट हुआ अपने बड़े भाई लेरी के साथ रहने के लिए, तो वहाँ पर उसको ये शौक़ चढ़ा कि वो डिफरेंट एनिमल्स को जमा करता था और वो उनको अपने साथ पालता था. ये शौक़ उसको क्यों चढ़ा? एज आई टोल्ड यू कि जो करपो की जो सिटी थी तो उसके चारों तरफ पानी है, और जिस इलाके में पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर जानवर और जो इंसेक्ट्स हशरात वगैरह होते हैं वो काफ़ी मिक़दार में होते हैं. तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स थे, तो इसीलिए उसको ये शौक़ चढ़ गया कि वो डिफरेंट एनिमल्स को जमा करता था और वो उसको अपने साथ पालता था. ओके. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. घर के साथ का जो गार्डन था उसके चारों तरफ एक बहुत ही पुरानी गिरती हुई दीवार थी जो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त शिकारगाह थी. अच्छा, यहाँ पर जेरल्ड ड्यूरल जो है तो ये अब बता रहा है कि वो किस तरह से उसको ये शौक़ पैदा हुआ कि वो डिफरेंट एनिमल्स को कलेक्ट करता था. सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वॉल, कि एक बहुत ही पुरानी दीवार थी उसके घर के इर्द गिर्द, और वो दीवार जो थी तो वो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चिरागा थी. मीन्स उस दीवार में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स रहते थे. वो वहाँ से वो उन इंसेक्ट्स को पकड़ता था और वो फिर उसको अपने साथ पालता था. It was an ancient brick wall that had been plastered, और ये एक बहुत ही पुरानी मीन्स एक कदीम दीवार थी जिस पर बार बार ऊपर से प्लास्टर किया गया था. But now this outer skin was green with moss. लेकिन अब इस दीवार की बैरूनी सतह बिल्कुल हरी हो गई थी, मीन्स काई की वजह से अब ये दीवार जो है तो वो बिल्कुल ग्रीन हो गई थी. आप लोगों ने देखा होगा ना, एक ऐसी दीवार या एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा जब पुरानी हो जाती है या जिस पे बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो दीवार या वो जगह जो है तो वो ग्रीन हो जाती है. जब लोग उस पर से चलते हैं ना तो स्लिपरी हो जाती है, लोग जो है तो स्लिप होते हैं उस जगह पर. सो ये बात हो रही है उसकी कि वो दीवार जो थी तो वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई थी. ऑब्वियसली उस पर बहुत ज़्यादा बारिश हुए होंगे तो वो दीवार जो है तो वो काई की वजह से बहुत ग्रीन जो है सब्ज़ हो गई थी. bulging and sagging with the damp of many winters. कई सर्दियों की नमी की वजह से वो दीवार मोटी हो गई थी और लटक रही थी. मीन्स वो दीवार चूँकि बहुत ज़्यादा पुरानी थी इसलिए काफ़ी मरतबा उस दीवार को प्लास्टर किया गया था, लेकिन
फिर भी वो दीवार जो थी तो वो काई की वजह से ग्रीन हो गई थी, सब्ज हो गई थी। और कई सर्दियों के गुजरने की वजह से और नमी की वजह से वो दीवार जो थी तो वो मोटी हो गई थी, मीन्स वो फूलना स्टार्ट हो गई थी, और जगह जगह से वो फ्लस्तर जो था तो वो लटक रहा था, हमदार हो गया था। The whole surface was an intricate map of cracks. दीवार की पूरी सतह दरारों का एक पेचीदा नक्शा बन चुका था। मीन्स उस दीवार में इतनी ज़्यादा क्रैक्स आ गई थी, इतनी ज़्यादा दरारें उसमें आ गई थी कि इस तरह से वो दिख रहा था कि जैसे किसी ने नक्शा बनाया हुआ हो। Some several inches wide, others as fine as hairs. कहीं कहीं वो दरारें बहुत वसी होते थे और कहीं कहीं वो बहुत बारीक, मीन्स बालों जैसे बारीक होते थे। वो दरारें जो उस दीवार में आई थी तो वो कहीं पर तो वो दरारें बहुत ज़्यादा वसी होती थी, बहुत बड़े बड़े दरारें होती थी, लेकिन कहीं कहीं वो दरारें जो थी तो वो हेयर की तरह, बालों की तरह बिल्कुल बारीक थी। Here and there large pieces had dropped off and revealed the rows of rose pink bricks lying beneath. यहाँ वहाँ से बहुत बड़े बड़े टुकड़े गिर गए थे और इसके नीचे गुलाब जैसे गुलाबी रंग के पत्थर नज़र आ रहे थे। मीन्स वो दीवार जो थी तो काफ़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए जगह जगह से प्लास्टर जो है तो वो गिर गया था। और जब प्लास्टर दीवार से गिर जाता है तो ऑब्वियसली उसके नीचे तो वो जो स्टोन्स होते हैं तो वो दिखाई देते हैं ना, स्टोन्स, तो जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, जो येलो टाइप का और कलर का और जो रेड कलर के होते हैं। लेकिन चूंकि वो दीवार बहुत पुरानी थी और जो जिस जगह से वो प्लास्टर जो थे, बड़े बड़े पीसेस जो थे तो वो गिर गए थे, तो उस जगह पर वो जो ईंटें नज़र आ रही थी तो वो बिल्कुल गुलाब जैसे रेड ईंटें जो थी तो वो नज़र आ रही थी। आई हैव अ पिक्चर ऑफ अ क्रम्बलिंग वॉल, लुक एट देयर। ये दीवार जो है, जो जिरल जिस दीवार के बारे में बात कर रहा है वो एग्जैक्टली इसी तरह का होगा, क्योंकि ये दीवार जो है काफ़ी पुरानी लग रही है। ये इसके ऊपर प्लास्टर हुआ है ये वाला, और ये प्लास्टर जो है जगह जगह से गिर गया है, और जिसके नीचे आप लोगों को ये ईंटें नज़र आ रही है, और इसमें जगह जगह पर बहुत सारे क्रैक्स भी हैं। देखिए कुछ क्रैक्स जो है बड़े बड़े हैं और कुछ बारीक बारीक क्रैक्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। सो बेसिकली दिस सेकंड पैराग्राफ इज़ अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वॉल। इसी तरह का एक दीवार था, उसके घर के इर्द गिर्द, और इसी दीवार में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, इंसेक्ट्स वगैरह रहते थे इन क्रैक्स के अंदर, और इन्हीं क्रैक्स के अंदर में से वो एनिमल्स कलेक्ट करता था और वो फिर उनको अपने पास रखता था। वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ लेट्स राइट द उर्दू मीनिंग ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एक्सट्रैक्ट मीन हासिल करना। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आप बीती। एक्सपर्ट मीन्स माहिर। सिबलिंग्स मीन बहन भाई। ग्रोन अप मीन जवान। क्रम्बलिंग मीन पुरानी। एंशियंट मीन्स कदीमी। मॉस मीन काई। एंड बल्जिंग मीन फूलना। एंड सैगिंग मीन्स हमदार. Write all these Urdu meanings on the top of that words, okay, in your books. Now note down your homework. Your homework is do reading of first 2 paragraphs of book page number 2. Thank you.